शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। জামুরিয়ার কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএম এর কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে পুড়ল বাইক, চলল ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলির ঘটনার সামাল দিতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনার পর থেকেই থমথমে গোটা এলাকা। রানীগঞ্জের পিএন মালিয়া রোডে এক বিস্কুট ডিস্ট্রিবিউটরের অফিস এবং গুদাম ঘরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনায় নগদ সহ প্রায় লক্ষাধিক টাকা চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি প্রকোষ্ঠের রাজ্য সভাপতি এবং কলকাতা জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক বিবেক গুপ্তা পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এক দিবসীয় সফরে ঘুরে গেলেন। সেখানে তাকে ফস বেকি, রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স সহ বিভিন্ন সংস্থার তরফে করা হলো সম্মানিত। দুর্গাপুরে অনলাইন লটারি চক্রের দুই পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ওই লটারি চক্রের সঙ্গে জড়িত 11 জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ধৃতদের এদিন তোলা হয় মহকুমা আদালতে। আসানসোলের রঘুনাথ বাটি এলাকায় ধসের ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক গ্রামবাসীদের মধ্যে। এলাকার একটি ক্লাব চত্বরে ধসের পর বিশাল আকারের গর্ত তৈরি হয়েছে। গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়িতেও দেখা দিয়েছে ব্যাপক ফাটল। গারুই নদীর সাফাইয়ের দাবিতে আসানসোল পুর নিগমের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া হলো স্মারকলিপি। ডিশেরগো ত্রিশক্তি মহিলা মণ্ডলের কুঞ্জতরিয়া এরিয়া শাখার তরফে দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হলো। খুশি প্রাপকরা। রানীগঞ্জে বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রক্তদান শিবির। শিবিরে বহু মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন। রক্তদানকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো শংসাপত্র। আসানসোলের হীরাপুরে জুয়ার বোট চালানোর অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো দুই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে। দুই অফিসারকে হীরাপুর থানায় আটক করে পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা জিজ্ঞাসাবাদ চালানো শুরু করেছেন। ক্রমাগত পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে দুর্গাপুরের বিধাননগর সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পের সামনে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখালেন সিপিএম এর কর্মী সমর্থকরা। লাগাতার আন্দোলন চলবে বলে জানানো হয়েছে নেতৃত্বের তরফে। বৃহস্পতিবার সর্বত্রই পালিত হলো জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।
দুর্গাপুরের ইস্কন মন্দিরে ঘটা করে দিনটি পালন করা হলেও এবার অতিমারির কারণে তা অনাড়ম্বর। স্নান যাত্রার অনুষ্ঠানে করা হলো কাটছাট। जामुरिया के केंदा इलाके में तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई। झड़प के दौरान आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट के साथ ही बमबाजी और गोली चलाने का आरोप है। झड़प में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जामुरिया थाना क्षेत्र के केंदा ग्राम इलाके में बुधवार की रात सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प को लेकर पूरा इलाका थोड़ी देर के लिए रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। झड़प के दौरान व्यापक रूप से तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी किए जाने का आरोप है। इतना ही नहीं, बमबाजी और गोली चलाए जाने का भी आरोप लगा है। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अभी भी इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। झड़प में दोनों पार्टियों के कई समर्थकों के घायल होने की खबर है। गंभीर रूप से घायल हुए 2 लोगों को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। बताया जाता है कि इस घटना का सूत्रपात बुधवार की रात उस वक्त हुआ जब केंदा मोड़ इलाके में सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस समर्थक आपस में उलझ पड़े। पार्टी करने को लेकर उनके बीच पहले विवाद हुआ और फिर मामला मारपीट तक जा पहुंचा। थोड़ी देर में ही इस मारपीट ने हिंसक संघर्ष का रूप धारण कर लिया और दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच टकराव शुरू हो गया। हालात उस वक्त और ज्यादा बेकाबू हो गया जब घरों व वाहनों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की गई। बहरहाल बृहस्पतिवार को जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक हरिराम सिंह उक्त इलाके के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम वासियों से बातचीत कर पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। हिंसक झड़प में जिन लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, विधायक हरिराम सिंह ने उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की। साथ ही उन्होंने घटना में शामिल दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने का आश्वासन दिया। घटना हुई छे, छोटो घटना निये अत बड़ो घटना हয়ে গেল, এটা ভাই খুব দুঃখ। এইখানে হলো, গ্রামেও হলো, তোমাদেরকে বলবার আমার কোনো নাই। আমি গ্রামেও গিয়েছিলাম, 2-3টি ঘর দেখে এসেছি, ওখানেও হয়েছে আর এইখানে হয়েছে। এটা তো ঠিক নাই, আমরা তো একসঙ্গে থাকছি। এই রাস্তা ওপারে ওরা থাকছে, রাস্তা এপারে আগে ছিল 89-তে যে ঘটনা হয়েছিল, পুনরাবৃত্তি তো কালকে হলো। আমরা 89-এ দেখেছিলাম, 81-এ এখন যে আছে এইটা ঠিক নাই। আমি কখনো সাপোর্ট করি না এসবকে। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज शहर के पीएन माल्या रोड इलाके में एक बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस और गोदाम में चोरी की घटना को लेकर फैली सनसनी। दरवाजे का ताला तोड़कर बिस्किट गोदाम और ऑफिस में घुसकर चोरों के दल ने वारदात को दिया अंजाम। शुरुआती तौर पर कैश समेत लगभग 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति चोरी होने का अनुमान। रानीगंज शहर के शिशु बागान के पीएन माल्या रोड इलाके में एक बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस और गोदाम में चोरी की घटना को लेकर सनसनी फैल गई। चोरी का खुलासा बृहस्पतिवार सुबह उस वक्त हुआ जब बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटर के कर्मचारी ऑफिस खोलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देखा कि ऑफिस के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। दरवाजे को बाहर से सिर्फ सटा दिया गया था। जब कर्मचारी भीतर घुसे तो उनके होश उड़ गए। दरअसल नीचे में बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटर का गोदाम और ऊपरी मंजिल पर ऑफिस है। ऑफिस जाकर कर्मचारियों ने देखा कि वहां भी दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, साथ ही अलमारी भी टूटी हुई थी। बाद में बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटर सुदीप्त राय ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गई। घटना के बारे में डिस्ट्रीब्यूटर सुदीप्त राय का कहना है कि गोदाम से क्या क्या चोरी हुआ है यह स्टॉक मिलाने के बाद ही पता चलेगा, जबकि ऑफिस में अलमारी और कैश बॉक्स तोड़कर चोर नकदी भी ले गए हैं।
उन्होंने कहा कि शुरुआती तौर पर नकदी एवं अन्य सामान मिलाकर लगभग 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति चोरी हुई है। चोरी की शिकायत रानीगंज थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने चोरी के मामले की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। সকাল 8টা সাড়ে 8টার সময় আমার ছেলেরা আসে, এসে দেখে দরজাটা খোলা খোলা মানে ভিতর থেকে চাপা আর কি। তো ওরা খেয়াল করেনি কি তালা নেই, ঢুকে দেখছে কোনো আওয়াজ নেই ভিতরে। তারপরে ওরা খেয়াল করে দেখে কি তালা ব্রেক করে ঢুকেছে, ফার্স্ট নোটিস করলো এটা। তারপরে যখনই ঢুকে দেখে যে নিচের আমাদের যেখানে গোডাউন আছে তালাগুলো একদম মানে তালা না ভেঙে একদম মানে শুদ্ধ উঠিয়ে নিয়ে চলে আসছে। তারপরে নিচে এখন গোডাউনে কি করেছে ওটা দেখুন, স্টক অ্যাসেস না করলে কিছু বোঝা সম্ভব নয় কত টাকা লস হয়েছে আমার। 1 নম্বর। 2 নম্বর উপরে এসে আমাদের যেটা অফিস আছে, এটা এখানে অফিসে দাঁড়িয়ে আছে, ওইখানে এসে আমাদের যে অফিসে যেখানে কাজকর্ম হয় সেখানে ক্যাশ ট্যাশ রাখা থাকে, ক্যাশ চেক পার্টি যেটা চেক দেয়, দেওয়ার পরে এই আলমারি ব্রেক করে নিয়ে চলে গেছে। আলমারিটা ব্রেক করে দিচ্ছে একদম মানে দেখাতে পারে এই যে একদম ব্রেক করা এটা। আচ্ছা, আনুমানিক কত ক্যাশ আর চেক মিলিয়ে টোটাল কত হচ্ছে? মোটামুটি অ্যারাউন্ড ওই 260-70 ধরুন মোটামুটি। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष और कोलकाता के जोड़ासांको विधानसभा केंद्र के नवनिर्वाचित विधायक विवेक गुप्ता पश्चिम बर्धमान जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां फौजबैकी, रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स समेत कई संस्थाओं ने विधायक को किया सम्मानित। विधायक विवेक गुप्ता ने हिंदी प्रकोष्ठ के कमेटी के पुनर्गठन की घोषणा की। गुरुवार को पश्चिम बर्धमान के दौरे पर अपनी टीम के साथ पहुंचे पश्चिम बंगाल हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जोड़ासांको विधानसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस विधायक एवं पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होने वाली हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय सन्मार्ग हिंदी दैनिक के मुख्य संपादक विवेक गुप्ता। जोड़ासांको विधानसभा केंद्र से विधायक चुने जाने के बाद विवेक गुप्ता पहली बार पश्चिम बर्धमान के सफर पर निकले थे। गुरुवार को बर्धमान, दुर्गापुर, रानीगंज, जामुरिया, आसनसोल एवं बराकर समेत शिल्पांचल एवं कोयलांचल के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों एवं स्वेच्छा सेवी संस्थाओं के साथ बैठक की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसी कड़ी में रानीगंज के बासरा मोड़ स्थित कार्यालय में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक का आयोजन एवं संचालन संदीप भालोटिया ने किया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष इंदर सिंह, सीताराम जी भवन कमेटी के अध्यक्ष विमल बाजोरिया, आसनसोल नगर निगम एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के सदस्य दिवेंदु भगत, दयाशंकर राय, स्वीटी लोहिया, दीनानाथ लोहिया, सदन सिंह, नेहा शाह, विनोद गुप्ता, महेश खेड़िया, सुनील गनेरीवाल, बाबूलाल सुमानी ने अपने अपने संगठन की ओर से विधायक विवेक गुप्ता को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। विवेक गुप्ता ने कहा कि समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। मैं हमेशा यहाँ आता जाता रहूँगा। स्वागत करके सम्मान दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप ने कहा था कि भाई कुछ लोग हम लोग मिलना चाहते हैं और रास्ते में पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली हमारे फौजबैकी चैंबर ऑफ कॉमर्स रानीगंज के कई सारे लोग हमारा इंतजार करते हैं, इसलिए यहाँ से भी कुछ लोग शायद वहाँ जाएंगे ही। तो मैं आप लोगों के बीच में खाली एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों का वोट, आप लोगों का सपोर्ट किसी ने टीएमसी को यहाँ पर जीत दिलाई। जितनी भी इस इलाके में बंगाल में जो दीदी की हैट्रिक हुई है, जो दीदी वापस नंबर भेज रही है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान है, ये मेरा मानना है। हमारे हिंदी सेल की टीम ने काम किया आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं त्रुटि रही होगी, हम उसको और आगे ठीक करेंगे और आप लोगों से और संपर्क गहरा और अच्छा बनाएंगे। आज हमारी आसनसोल में पूरी हिंदी सेल का रिकॉन्स्टिट्यूशन होकर नया कमेटी, नए सारे पदाधिकारी की घोषणा भी हो रही है। हो सकता है कुछ नए चेहरे होंगे, कुछ पुराने चेहरे होंगे, और उसका काम यही है कि आप लोगों तक पहुँचे और दीदी की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको आप तक पहुँचाएँ। यहाँ मैं ज़्यादा कोई भाषण देने के लिए या उसके लिए नहीं आया हूँ। कुछ लोग बता रहे कुछ समस्या है, तो वो मैं अलग से एक करके यहाँ पर या जहाँ हम लोग जा रहे हैं इसके बाद वहाँ बात कर लेंगे। और ये मेरा घर, मैं यहाँ रहूँ शायद नहीं रहूँ, पर ये मेरा घर है और यहाँ मैं आता जाता रहूँगा। तो आप लोग ये कतई न समझें, क्योंकि आज भी किसी ने मुझे न्योता नहीं दिया था, मैं अपने आप आया। तो
दे, ये मैं होने नहीं दूंगा और मैं आपको छोड़ दूंगी, ऐसा हो नहीं सकता। इसके पश्चात रानीगंज के स्पोर्ट्स असेंबली क्लब में फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से नवनिर्वाचित विधायक विवेक गुप्ता को पुष्पगुच्छ, मोमेंटो, स्मारिका एवं उत्तरीय देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह का संचालन फौजबैकी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आरपी खैतान ने किया। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, फौजबैकी के महासचिव सचिन राय, हिंदी प्रकोष्ठ के साउथ बंगाल के उपाध्यक्ष मनोज यादव, पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव, ओम प्रकाश बाजोरिया समेत व्यवसायिक संगठन के अन्य प्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ अपने हिंदी भाषी वोट बैंक को साधने के लिए तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा संगठन का पुनर्गठन किया गया है। बृहस्पतिवार को पश्चिम बर्धमान जिले के दौरे पर पहुंचे तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष और जोड़ासांको विधानसभा क्षेत्र से विधायक विवेक गुप्ता ने कमेटी में किए गए विस्तार के बारे में जानकारी दी। आसनसोल शहर के उषाग्राम स्थित हिंदी भवन में हिंदी प्रकोष्ठ के तरफ से विधायक विवेक गुप्ता को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक विवेक गुप्ता ने बताया कि नवनिर्वाचित 5 विधायकों को हिंदी प्रकोष्ठ का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इनमें जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरेराम सिंह, बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विधान उपाध्याय के अलावा विधायक मनोज तिवारी, राजेंद्र प्रसाद सिंह, सोमनाथ झा शामिल हैं। इसके अलावा मनोज यादव को दक्षिण बंगाल, राजेश सिन्हा को दक्षिण कोलकाता, संजय शर्मा को उत्तर बंगाल का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि हिंदी प्रकोष्ठ के पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी का नया अध्यक्ष सिंटू भुइया को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 19 सदस्यों की कार्यकारिणी में भी कई नए लोगों को जोड़ा गया है। साथ ही कुछ जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। मुझे बहुत खुशी है कि सबसे मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट लोगों का आपसे परिचय करा रहा हूँ। हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट संगठन जिसके बारे में मैंने कहा, अशोक ओझा जी हैं। अशोक जी, हमारे साउथ बंगाल के नए वाइस प्रेसिडेंट मनोज यादव जी हैं। कलकत्ता के लिए वाइस प्रेसिडेंट होंगे राजेश सिन्हा जी, और नॉर्थ बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट है संजय शर्मा जी। इसके अलावा हमारे करीब 19 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं। ये धनंजय सिंह है हावड़ा से, दिनेश जैन कलकत्ता, डॉक्टर हरेंद्र सिंह हावड़ा, हरे कृष्णा भट्टर, कैलाश मिश्रा, मनिंद्र कुमार सिंह, ओम प्रकाश पोद्दार, राम प्यारे राम, ये हमारे काउंसिलर रुपेश यादव जी हैं, शैलेश राय, संतोष सिंह, संजय टिब्रेवाल, शशि तापड़िया, श्यामलाल महतो, सुमन सिंह, सुरेश मिश्रा, ये हमारे चापदानी के चेयरमैन भी हैं। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন সময় একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम तो पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा
समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476 9832733886। কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর।
ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। दुर्गापुर में ऑनलाइन लॉटरी का गोरख धंधा चलाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर ऑनलाइन लॉटरी चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। दुर्गापुर थाने की पुलिस ने ऑनलाइन लॉटरी चलाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की रात पुलिस ने दुर्गापुर के मधुपल्ली इलाके में छापेमारी की और अनुप माइती एवं विधान मलिक को अपने गिरफ्त में ले लिया। बताया जाता है कि काफी समय से चोरी छिपे ऑनलाइन लॉटरी का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। बड़ी संख्या में लोग, खासतौर पर युवा पीढ़ी ऑनलाइन लॉटरी में बर्बाद हो रही थी। आखिरकार पुलिस को जब ऑनलाइन लॉटरी के गोरख धंधे की शिकायत मिली तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। इस मामले को लेकर कुल 11 लोगों के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों की पेशी दुर्गापुर अदालत में की गई। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर ऑनलाइन लॉटरी का गोरख धंधा चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। दुर्गापुर से साधन रूच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल के रघुनाथ बाटी इलाके में भूधसान की घटना को लेकर ग्रामवासियों में फैली दहशत। स्थानीय एक क्लब में भूधसान के बाद गोफ बन गया, जबकि कई घरों में दरार पड़ गई है। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के रघुनाथ बाटी ग्राम में भूधसान की घटना को लेकर ग्रामवासी दहशत में हैं। बताया जाता है कि बुधवार की देर रात सर्वप्रथम स्थानीय क्लब में भूधसान हुआ और उसकी चपेट में आने से क्लब के भीतर कुएं के आकार का गहरा गोफ बन गया। इसके साथ ही आसपास के कई घरों में दरार पड़ गई है। बृहस्पतिवार सुबह रघुनाथ बाटी ग्राम में जाकर देखा गया कि कई घरों में दरार पड़ गई है। क्लब में जिस जगह पर धसान हुआ है उसकी घेराबंदी कर दी गई है और क्लब में किसी के भी प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई है। भूधसान घटना को लेकर इलाके के लोग आतंकित हो गए हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इलाका भूधसान प्रभावित है और काफी समय पहले यहाँ कोयला खनन किया गया था, लेकिन सही ढंग से भूगर्भ में बालू भराई नहीं की गई। इसी वजह से भूधसान की घटना हो रही है। कल के रात्रि बेलाय ধস নেমে গেছে এই সাইডে, গোটায় ফাটল ধরে গেছে, দিয়ে এখন দোকান মানে বন্ধ করতে বলেছে। এবারে কি করে খাবো, ওই যে এখন দোকান বন্ধ করে গেছি। আজকে প্রশাসন এসেছিল এখানে, সব দেখে গেল। দিয়ে আপনারা আতঙ্কে রয়েছি আমরা। अच्छा, ভয় খুলতে পারছি না দোকান মানে। बहरहाल इस घटना की सूचना पाकर पूर्व पार्षद श्रावणी मंडल इलाके में पहुंची और उन्होंने ग्रामवासियों के साथ बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के कानून एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक और आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी को भी घटना के बारे में जानकारी दी। आसनसोल पौर निगमेर 20 নম্বর ওয়ার্ডের রঘুনাথবাটি গ্রামে গতকাল রাত্রে ধস নেমেছে। তার মধ্যে বিশেষ এফেক্ট হয়েছে শিবশক্তি ক্লাব, একদম ভেতরটা বসে গেছে। সঙ্গে দু একটা যে হাওয়া চানক ফাঁকা ছিল সেগুলোও বসেছে, দু একটা বাড়িও ফাটল ধরেছে। এর আগে 3-4 বছর আগেও এরকম হয়েছিল, আমরা ইসিএল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েওছিলাম। এডিডিএ থেকে এসে পুরোটা সার্ভে করে আমাদের এটা ধসপ্রবণ এলাকা বলে সবাইকে আইডেন্টি কার্ডও দিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে আইডেন্টি কার্ড আছে সবারই, তো এখন দেখা যাচ্ছে এই ধস আরম্ভ হয়েছে। ক্লাবটা আজকে গেল, 2 জনের বাড়ি ফাটল ধরেছে। গ্রামের লোক তো সব রয়েছে, সবাই আতঙ্কে রয়েছে যে কখন কার বাড়ি চলে যাবে। সব মানুষজন আমরা হুড়মুড়িয়ে তলায় চলে যাব। তো আমরা আপনাদের মাধ্যমে প্রশাসনিক যাদের জানানোর মানে আমাদের বিধায়ক মন্ত্রী মলয় ঘটককে আমি টেলিফোনিক মেসেজ দিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অমর চ্যাটার্জিকেও টেলিফোনিক মেসেজ দিয়েছি, তাছাড়া পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি এবং আপনাদের মাধ্যমে ইসিএল কর্তৃপক্ষদের আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে মানুষজন আতঙ্কে রয়েছে, তাদের জন্য রিহ্যাবিলিটেশনের যে ব্যবস্থা যদি থাকে এখন আর বলবো না, যেহেতু ধস আরম্ভ হয়ে গেছে, रिहेबिलिटेशन व्यवस्था যেন সত্তর করা। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल नगर निगम के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गारोई नदी की सफाई करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस द्वारा नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया।
बृहस्पतिवार को आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस के बैनर तले आसनसोल नगर निगम के समक्ष प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गारुई नदी की सफाई के साथ ही निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रत्येक साल बारिश के दिनों में गारुई नदी का जलस्तर बढ़ने पर रेल पार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस बार भी पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश के कारण रेल पार में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे, इसलिए अविलंब गारुई नदी की सफाई किए जाने की जरूरत है। उन्होंने अवैध अतिक्रमण को भी हटाए जाने की मांग की और कहा कि रेल पार इलाके के लोग पिछले काफी समय से जल जमाव की समस्या का सामना कर रहे हैं। नगर निगम के तरफ से हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और समस्या जस की तस बनी हुई है। जिसको हम लोग आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं ऐसा लगता है कि वो आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये वाला है, जहाँ हम लोग रहते हैं वो पंचायत इलाका। तो हम लोग ये दावी रखने के लिए आए, जो हॉस्पिटल के पास में जो इलाका है कचरा कीचड़ से भरा हुआ रहता है, गर्मी के दिन गड्ढा रहता है, हमारी माँ और बहनें निकल नहीं सकती, चल नहीं सकती बाजार हाट करने के लिए। दूसरा दावी हम लोगों का है, जो ओके रोड और बाबू तालाब का जो रोड है, जो बीसी राय रोड से जोड़ता है, जो मेन रोड से बाईपास जाने का रास्ता होता है, वो दोनों रोड इतना डैमेज है, वहाँ बाढ़ पानी नहीं आया है न पानी आया है, मगर रोड इतना ही खराब है तो लोग अपना घरों से निकल करके ईटा और बालू भर रहे हैं, तब गाड़ी वाली चलने आदमी जो हम लोग अगला बार कॉर्पोरेशन हमारे पुराने भाई काउंसलर थे कांग्रेस के, तो हम लोगों ने नदी से साफ सफाई करा करके गार्बेज को हम लोग बाहर निकाल करके फेंका था, मगर अफसोस है नदी का सफाई होने के अलावा वो अपना सहूलत के लिए गार्बेज उसी किनारे रख दिया, मलबा उसी किनारे रख दिया, मलबा हटाया नहीं, जिसके कारण से बाढ़ पानी नदी में तैरा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी साइन बोर्ड में तब्दील हो गई है, कांग्रेस का अब कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस দলটা একটা সাইনবোর্ড হয়ে গেছে। কংগ্রেস দলের কোনো অস্তিত্ব আর পশ্চিমবঙ্গ কেন ভারতবর্ষেও নেই। তাই শুধুমাত্র এই পেপারে আর টিভিতে আসার জন্য এরা এইসব নাটক করছে। আজকে রেলপারে যা উন্নয়ন হয়েছে বিগত 10 বছরে, তার আগে স্বাধীনতার পর এত উন্নয়ন কোনোদিন হয়নি। আজকে রেলপারে সব রকম রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে, ড্রেন থেকে শুরু করে, নদীর পার বাঁধানো থেকে শুরু করে, ওভারহেড জলের ট্যাঙ্ক থেকে শুরু করে সব কিছু আজকে রেলপারে তৈরি হয়েছে বিগত 10 বছরের মধ্যে। তো যারা এই উন্নয়নটা দেখতে পাচ্ছেন না, আমি বলবো যে তাদের চোখটা দেখানোর জন্য, তাদের চোখের চিকিৎসা করার জন্য। ওনারা বলছেন। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। Raniganj Lions JDMC TAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022. For class 11 shall commence from 19th April 2021 to 21st April 2021 for science, commerce and humanities. Forms will be available online as well as offline. For more details contact school office number 0341244865 7501626622 8 AM to 2 PM all working day. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 AM to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with a birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building,
Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 0341 2440 Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है राम कुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো-এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো রামকুমার খায়তান বিল্ডিং, মেদিনীপুর রোড, गिरजापाड़ा, रानीगंज। डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की कुनुस्तोरिया एरिया शाखा की तरफ से 30 जरूरतमंद परिवारों के बीच बांटी गई राशन सामग्री। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल आगे आया। डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की कुनुस्तोरिया एरिया शाखा कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के सहायता के लिए आगे आया है। बृहस्पतिवार को कुनुस्तोरिया के दुर्गा मंदिर के पास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लगभग 30 जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन सामग्री के साथ रोजमर्रा के जरूरत के सामान वितरित किए गए। डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्ष पूनम मिश्रा के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रत्येक परिवार को 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, आटा, सरसों तेल, हल्दी, नमक, साबुन, छाता, मच्छरदानी, फिनाइल और मास्क प्रदान किया गया। डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की शाखा की सदस्यों ने बताया कि डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्ष पूनम मिश्रा के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में संस्था द्वारा लगातार समाज सेवा मूलक कार्य किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के समय संस्था द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता की गई थी। सेवा कार्य का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के कुमार बाजार स्थित विवेकानंद सेवा केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। रानीगंज के कुमार बाजार स्थित विवेकानंद सेवा केंद्र में बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। राज्य के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल द्वारा भेजे गए वातानुकूलित बस में तमाम लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी और रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक तापस बैनर्जी ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। दरअसल कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के समय अस्पतालों के ब्लड बैंक में रक्त की कमी न हो, इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के तरफ से जगह जगह रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि कई लोग रक्तदान करने से हिचकिचाते हैं, मगर विशेषज्ञों का कहना है कि रक्तदान करने से दिल की सेहत में सुधार होता है, साथ ही अन्य कई फायदे भी होते हैं। उन्होंने आम लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। তাদের আমি জোরাত করে অনুরোধ করব যে রক্ত দিলে শরীর খারাপ হয় না, বরং শরীর ভালো হয়। এবং বিবেকানন্দের এই আশ্রমের সামনে আজকের এই রক্তদানের শিবিরের পক্ষ থেকে অনুরোধ করব যে বিবেকানন্দ যে কথাটা বলেছিল
যে জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন তো এই মানুষের মধ্যেখান দিয়ে সেবা করার মধ্যেখান দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই সেবা যদি করতে পারে তাহলে যাতে তার জীবনটা ধন্য হয়। वहीं विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि रक्तदान से किसी जरूरतमंद मरीज को नया जीवन मिल सकता है, इसलिए लोगों को रक्तदान से कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। हमें यह संकल्प लेना होगा कि रक्त के अभाव में किसी भी मरीज की जान न जाने पाए। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को पहले सामाजिक कार्यकर्ता बनने की सलाह दी और कहा कि अच्छा राजनीतिक कार्यकर्ता बनने से पहले अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बनना बेहद जरूरी है। এইটা যেদিন আমরা 10 জনে করতে পারবো সেদিন ভারতবর্ষে কোনো মানুষকে রক্তের অভাবে মারা যেতে হবে না। আমরা চেষ্টা করি সেই জায়গায় পৌঁছাবার জন্য। এখন একটা অতিমারী সময় চলছে, সেই সময় যেসব ভাইয়েরা বন্ধুরা সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে এই রক্তদান করলেন, আমি মনে করি তারা একটা বৃহৎ কাজ করলেন, মহৎ কাজ করলেন। আর যে কোনো রাজনৈতিক কর্মী যদি ভালো সমাজকর্মী হতে না পারে সে কিন্তু ভালো রাজনৈতিক কর্মী হতে পারে না। তাই প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মীকে ভালো করে সমাজকর্মী হতে হবে, সমাজের কাজ করতে হবে, তবেই সে একজন ভালো রাজনৈতিক কর্মী হতে পারবে। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य दिबेंदु भगत, पूर्व विधायक सोहराब अली, टाउन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कंचन तिवारी, आलोक बोस, संदीप भालोटिया, सुभाष बैनर्जी समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আসানসোলের হীরাপুর থানার এসআই ও এএসআই বিরুদ্ধে জুয়ার ঠেক চালানোর অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনা জানাজানি হতেই পুলিশ মহলে শোরগোল পড়ে যায়। দুই অফিসারকে হীরাপুর থানায় আটক করে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের একসাথে বসিয়ে চালানো হচ্ছে জেরা। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের আসানসোল হীরাপুর থানার দুই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে বার্নপুর এলাকায় জুয়ার বোর্ড চালানোর অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার রাতে এই ঘটনায় পুলিশ মহলে পড়ে যায় শোরগোল। জানা গিয়েছে এসআই ও এএসআই ইন্সপেক্টরকে আটক করা হয়েছে। ঘটনায় রাত 11টা শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত ওই দুই অফিসারকে হীরাপুর থানায় নিয়ে আসা হয় আটক করে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনা নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে বুধবার সন্ধ্যায় আচমকাই পুলিশ আসে এবং দুজনকে ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, যদিও সরকারিভাবে পুলিশি তরফে কিছু জানানো হয়নি। হীরাপুর থানার রামবাঁধ এবি টাইপ কোয়ার্টার সংলগ্ন এলাকা থেকে সাব ইন্সপেক্টর ও হীরাপুর থানার ময়দান থেকে এএসআই কে আটক করা হয়। যদিও বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার ঠাকুর তেমন কিছু বলতে চাননি। তিনি জানিয়েছেন বিষয়টা আভ্যন্তরীণ। তবে সূত্রের খবর ওই দুই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দারাই গত কয়েকদিন আগেই পুলিশ কমিশনারকে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, আর এরপরেই অভিযানে নেমে ওই দুই পুলিশ অফিসারকে আটক করা হয়। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। খবরে এখন আবার একটু বিরতি, সঙ্গে থাকবেন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে, मनपसंद चाक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।
ক্রমাগত পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দুর্গাপুরের বিধাননগর সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন সিপিএম এর কর্মী সমর্থকরা। নেতৃত্ব জানিয়েছেন মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে তাদের লাগাতার আন্দোলন চলবে। লাগাতার পেট্রোল এবং ডিজেলের এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নেমেছে বাম কর্মী সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের বিধাননগর সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্লাকার্ড হাতে পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখান বাম কর্মী সমর্থকরা। ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য পঙ্কজ রায় সরকার সহ অন্যান্যরা। তিনি বলেন, যেভাবে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি বেড়েই চলেছে তাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। একে অতিমারী পরিস্থিতিতে কর্মহীন মানুষ, তার উপর লাগাতার পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধিতে জোড়া ফলায় পড়েছে সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি এদিন তিনি সঠিক কোভিড ভ্যাকসিনেশন নিয়েও সরব হন। এবং গড়পড়তায় যদি বলেন গোটা দেশে পেট্রোল ডিজেলের দাম প্রায় 100 টাকার কাছাকাছি পৌঁছেছে, 1 নম্বর বিষয়। 2 নম্বর বিষয় যে এই ফলে জিনিসপত্রের দাম হচ্ছে ব্যাপক জায়গায় পৌঁছেছে, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে তেল সবজি সমস্ত কিছু পৌঁছেছে। 3 নম্বর বিষয় হচ্ছে যে কোভিড ভ্যাকসিন যা বলছে ইউনিভার্সাল সার্বজনীন, অথচ এখনও কোভিডে ফার্স্ট ডোজ সেকেন্ড ডোজ সমস্ত মানুষ পাচ্ছে না। আমরা বলছি সমস্ত মানুষকে কোভিডে ফার্স্ট ডোজ সেকেন্ড ডোজ অবিলম্বে দিতে হবে, প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিতে হবে, যা দেশের অন্যান্য প্রান্তে শুরু হচ্ছে বলে দেখছি, আমাদেরও দিতে হবে। আর চতুর্থ আমরা যে কথা বলছি যে করোনার সময় করোনার চিকিৎসার ব্যাপারে, করোনার ওষুধের ব্যাপারে অহেতুক জিএসটি নিয়ে এই চিকিৎসার খরচকে বাড়িয়ে তুলছে, যা মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের নাগালের বাইরে মৃত্যু ছাড়া কোনো গতি নেই। থার্ড ওয়েভ আবার আসছে, আমরা বলছি এই সমস্ত জিএসটি প্রত্যাহার করা। আমরা তাই মোদী সরকারের কাছে এই দাবি নিয়ে, রাজ্য সরকারের কাছে এই দাবি নিয়ে আমরা সমস্ত জায়গায় বিক্ষোভ করি। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। বৃহস্পতিবার সর্বত্রই পালিত হলো জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা। প্রতিবারই দুর্গাপুরের ইস্কন মন্দিরে ঘটা করে দিনটিকে উদযাপন করা হয়। সেখানে এবছর অতিমারির কারণে অনাড়ম্বর স্নান যাত্রা অনুষ্ঠিত হলো ওই মন্দিরে। স্নান যাত্রার অনুষ্ঠানে অনেকটাই কাটছিট করা হয়েছে এবছর। বসেছে আজ রথের তলায় স্নান যাত্রার মেলা। সকাল থেকে বাদল হলো, ফুরিয়ে এলো বেলা। হ্যাঁ, আজকের এই দিনটিকে উপলক্ষ করেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এই কবিতা। তবে বর্তমান অতিমারির সময়ে এবার স্নানযাত্রার মেলা তো দূরস্থ, নেই কোথাও আড়ম্বরটুকু। যেমনটা বৃহস্পতিবার জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা উপলক্ষে দুর্গাপুরের ইস্কন মন্দিরে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। সকাল থেকেই ছিল ভক্তদের ভিড়, তবে সবটাই হলো করোনা বিধি মেনে। স্নানযাত্রার অনুষ্ঠানে অতিমারির কারণে অনেকটাই কাটছাট করা হয়েছিল। অন্যান্য বছরে রাত্রি 8টা পর্যন্ত চলে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কিন্তু এবছর সন্ধ্যা 6টায় মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে, জানিয়েছেন মন্দিরের পুরোহিত। বহু কাল পূর্বে ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্ধে ষড়চিশ মনু রাজত্বের সময় ভগবান নীলমাধব জগন্নাথ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই দিনকে জগন্নাথের জন্মদিন বা আবির্ভাব তিথি বলা হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমার দিনকে। তো সেই আবহমান কাল ধরে আজকের দিনে জগন্নাথের মহাস্নান উদযাপিত হয়। যেহেতু জগন্নাথের দারুব্রহ্ম, এই বছরে একদিনই জগন্নাথের এই স্নান উৎসব উদযাপিত হয়। তো সেই আবহমান কাল ধরে আজ পর্যন্ত জগন্নাথের এই স্নানযাত্রা উদযাপিত হচ্ছে। দুর্গাপুর ইস্কনও সেই রথযাত্রা পূর্বে জগন্নাথের স্নানযাত্রা উৎসব উদযাপন করছে। সকাল থেকে দ্বার পূজা এবং গো পূজার মাধ্যম দিয়ে জগন্নাথের আরাধনা আরম্ভ হয়েছে। তারপরে পহণ্ডি বিজয়ের মাধ্যমে জগন্নাথকে মূল মন্দির থেকে স্নান বেদিতে আনয়ন করা হয়েছে। স্নানের শয্যায় জগন্নাথকে সজ্জিত করা হয়েছে। তারপরে বিবিধ প্রকার অর্চন সম্পন্ন করে জগন্নাথকে পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত দিয়ে অভিষেক করা হয়েছে। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, दुर्गापुर। अंडाल के खांद्रा ग्राम स्थित ओल्ड एज होम में इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा 22,30,000 रुपए की लागत से बनाए गए 4 कमरों का उद्घाटन किया गया। कमरों का उद्घाटन इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर सोमेश दास गुप्ता द्वारा किया गया।
गुरुवार को अंडाल ब्लॉक के खांद्रा ग्राम पंचायत अंतर्गत खांद्रा ग्राम स्थित ओल्ड एज होम में इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा CSR के तहत 22,30,000 रुपए के लागत से बनाए गए 4 कमरों का उद्घाटन किया गया। इन कमरों का उद्घाटन इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के ऑल टाइम डायरेक्टर सोमेश दास गुप्ता द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर सोमेश दास गुप्ता ने कहा कि इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा CSR के तहत खांद्रा ओल्ड एज होम में नवनिर्मित 4 कमरों में वृद्ध लोगों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इस तरह के वृद्धाश्रम का प्रचलन समाज में धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा पूरे भारतवर्ष में इस तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं और आने वाले समय में भी किया जाएगा। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। জামুরিয়ার কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস এবং CPM এর কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে পুড়ল বাইক, চলল ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলির ঘটনা। ঘটনার সামাল দিতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনার পর থেকেই থমথমে গোটা এলাকা। রানীগঞ্জের PN মালিয়া রোডে এক বিস্কুট ডিস্ট্রিবিউটরের অফিস এবং গুদাম ঘরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনায় নগদ সহ প্রায় লক্ষাধিক টাকা চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি প্রকোষ্ঠের রাজ্য সভাপতি এবং কলকাতা জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক বিবেক গুপ্তা পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এক দিবসীয় সফরে ঘুরে গেলেন। সেখানে তাকে ফস বেঁকিয়ে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স সহ বিভিন্ন সংস্থার তরফে করা হলো সম্মানিত। দুর্গাপুরে অনলাইন লটারি চক্রের 2 পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ওই লটারি চক্রের সঙ্গে জড়িত 11 জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ধৃতদের এদিন তোলা হয় মহকুমা আদালতে। আসানসোলের রঘুনাথ বাটি এলাকায় ধসের ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক গ্রামবাসীদের মধ্যে। এলাকার একটি ক্লাব চত্বরে ধসের পর বিশাল আকারের গর্ত তৈরি হয়েছে। গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়িতেও দেখা দিয়েছে ব্যাপক ফাটল। গারুই নদীর সাফাইয়ের দাবিতে আসানসোল পুর নিগমের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া হলো স্মারকলিপি। বিশেরগ ত্রিশক্তি মহিলা মণ্ডলের কুঞ্জতরিয়া এরিয়া শাখার তরফে দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হলো। খুশি প্রাপকরা। রানীগঞ্জে বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রক্তদান শিবির। শিবিরে বহু মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন। রক্তদানকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো শংসাপত্র। আসানসোলের হীরাপুরে জুয়ার বোট চালানোর অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো 2 পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে। 2 অফিসারকে হীরাপুর থানায় আটক করে পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা জিজ্ঞাসাবাদ চালানো শুরু করেছেন। ক্রমাগত পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে দুর্গাপুরের বিধাননগর সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পের সামনে মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখালেন CPM এর কর্মী সমর্থকরা। লাগাতার আন্দোলন চলবে বলে জানানো হয়েছে নেতৃত্বের তরফে।
বৃহস্পতিবার সর্বত্রই পালিত হলো জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা। দুর্গাপুরের ইস্কন মন্দিরে ঘটা করে দিনটি পালন করা হলেও এবার অতিমারির কারণে তা অনাড়ম্বর। স্নান যাত্রার অনুষ্ঠানে করা হলো কাটছাট। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।